असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख जप असंख भाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह भट सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवण कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ जुगो जुग अटल चबर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर प्यार सत्कार विच जुड़ मिल बैठे सत्संगी प्यारिओ, वड्डे भागां द्वारा सत संगत दीआं ये जो अमोलक घड़ियां प्राप्त होईयां हन, प्रेम भावना सहित आप जी ने सिमरन विच हाजरियां भरियां हन। अपनी रसना नूं पवित्र करदिआं सिमरन दे विच हाजरियां लगवाइयां हन। सवाओ संध्या वेले दे इस दीवाना की लड़ी के अंदर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृतमयी गुरबाणी दी पवित्र विचार लड़ीवार विचार धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह महाराज जी के पवित्र मुखार बिंद तो उचारण की जप बाणी की तकरीबन आप 16वीं पौड़ी तक विचार जी है श्रवण कर चुके हाँ। अब यतन करना है 17वीं पौड़ी के विच जो मेरे पातशाह ने बख्शिश की है उसकी विचार आप सतगुरु धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह महाराज जी को आज्ञा लैके कि सतगुरु पातशाह महाराज जी आप जी ही संगत विच वरतो ते अपनी इस अगम्मी बाणी की विचार आप ही करवा लो जी। अदब सत्कार सहित रसना पवित्र करदिआं गुरु बख्शी फतेह प्रवान करिए जी। आखिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਪਿਛਲੇਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੜਾਅ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਸੁਣਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਹਨ, ਫਿਰ 4 ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਦ ਆਸਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵੇਖੋ, ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅੱਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਤਲੀ ਪੌੜੀ, ਅੰਤਲੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛਿੜਕ ਜਾਵੇ, ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਰ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। 38 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 100 ਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। 100 ਦਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ, ਧਰਮਖੰਡ, ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤਾਨ ਵੱਲ ਚੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁੜ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ, ਸਾਧਕ, ਜੋਗੀ, ਜੰਗਮ, ਪੀਰ, ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸਾ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ, ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ, ਕਈ ਯੁੱਗ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਹ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਭਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇਰੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ
पिछे पछताए कागज कलम न लिखन हार मन्ने का वह करन विचार ऐसा नाम निरंजन हुए देखो मन जाने मन कोई। कि जे कोई मन करके जान लेता है तो उसका नाता उस ऐसे परमात्मा के नाम नाल जुड़ जाता है जिहड़ा निरंजन है। हुण ये जिहड़ी पंक्ति सी ये जिहड़ी विचार सी बार बार उन्हां 4 पौड़ियां दे विच चली सी। हुण इन्हां पौड़ियां दे विच ही ये भी 4 ही पौड़ियां ने गिणती दीआं ते इन्हां दे विच भी एक गल जिहड़ी है समान आवेगी उसे तो ही आपां विचार जिहड़ी है आरंभ करनी है। सतगुरु पातशाह कथन करदे हन कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। जेकर इन्हां 4 पौड़ियां दी विचार को आप जी ने समझना है तो इस एक गल ते तुसां जोर दे दिओ जे बाकी 4 दियां 4 पौड़ियां आपी समझ विच पै जाणियां हन। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। ये परमात्मा जो कुछ भी तेनू चंगा लगता है वो बड़ा ही हुआ है। जो कुछ तेरी खेड इस पसारे विच वरत रही है वो सारा कुछ तेरी रजा के अंदर ही है जो तू चाहता है। पर ये पातशाह तू सदा ही सलामत है। एक तू ही है जिहड़ा सदा इस सृष्टि दे विच टिकिया रहिंदा है। जो तुद भावै साई भली कार वो सदा सलामत निरंकार। हुण किन्ना कुछ जो परमात्मा नूं भाउंदा है उस भाउण वाले दे पसारे दे विच किन्ना कुछ वरत रहा है। साडे समाज दे विच 2 क्रियावां चलदियां हन। वेखो जिंदगी भी 2 पड़ावां विचों गुजरदी है। जे दिन बनिया है ते रात है। इसे तरह जे चानना है ते हनेरा भी है। जेकर नेकी है तो बदी भी उसे दे नाल है। हर सिक्के दे 2 पहलू हैं। जीवन में मनुख के जन्म तो लैके मरण तक अखीरले पड़ाव तक इन्हां श्रृंखलावां दोनों के विचों दी होके गुजरता है। जेकर दुख है तो सुख भी है। हुण जदों इस पौड़ी दे आपां अर्थ समझने ने तां इसे दे नाल दूजी पौड़ी जुड़ जाएगी। असंख जप असंख भाओ। जिथे असंख तरह का जप है असंख शब्द है संख्या तो जिहड़ा रहत होवे जिहड़ा किसी भी संख्या विच नहीं आउंदा। 100 तो गिनती आरंभ होती है 1 तो लैके 100 तक जाके फिर हज़ारां तक लखां तक करोड़ां तक नील है अरब खरब पता नहीं कितनी को गिनती है। गिनती मनुख करता जाए तो गिनती अगे तो अगे वधी जाती है। पर पातशाह जी ने जिहड़ा इत्थे मोहर लगा दी है वो है असंख जिहड़ा किसी भी संख्या विच नहीं होंदा। पातशाह कथन करते ने कोई संख्या दा अखीर पाउण वाला भी शायद जिहड़ा दुनिया के उपर कोई जिहड़ा है गणित नूं समझण वाला शायद कोई गिणती का भी अंत पा लवे। पर इत्थे जिहड़ा शब्द वरतिया है असंख जप इन्नी तरह का जप है जिहड़ा किसी गिणती विच नहीं हुंदा। जप दीआं इन्नियां क्रियावां हन जिहड़ियां बहु गिणती विच हन असंख हन किसी भी गिणती विच नहीं हन। हुण एक तां इस पौड़ी दे विच जिहड़ा है जप दे गुण दसे हन भाव दे गुण दसे हन पूजा दे तप ताव दे गुण दसे हन। इसे दे नालों जदों दूजी पौड़ी जिहड़ी है आरंभ हो जाती है उस दे विच पातशाह आखदे हन कई इस समाज दे विच इहो जिहे भी हन जिहड़े असंख मूर्ख अंध घोर। 17वीं पौड़ी तो बाद जिहड़ी अगले दी पौड़ी है उस विच आख्या है गिणती तो रहत हन ऐसे मनुख जिहड़े मूर्ख तन ते जीवन गुजारदे हन। जेकर जप अनेक तरह का है जप करन वाले अनेक तरह के हन तां इसे समाज दे विच ऐसे मूर्ख लोग भी हन जिहड़े बहु गिणती वाच हन जिन्हां दी कोई गिणती नहीं है। असंख्य मूर्ख अंध घोर।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ। ਜਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਪ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਆਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ। ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੰਦਗੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਗਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੋਟੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨੇ ਦਾਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਕੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾਨ ਚੜਾਵਾ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਅਰਪਣ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ। ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੰਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਵਿਣ ਸਹਿਜੈ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਬਿਨ ਸਹਿਜ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਟਿਕਾਉ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦਾ ਸੰਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਬਿਨ ਸਹਿਜ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਜਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ 700 ਅੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਰੱਖਣਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਪਾਠ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ। ਕਮਾਵੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹਰੀ ਹਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਖੇਡ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਤੀ ਲੁਟੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਜਮ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੈ
पर असीं भी असल दे विच बहुतात विच ऐसे कर्म करते हैं जिहड़े सरीरक तौर ते क्रियावां करते हैं। जे सौखा जिहा समझना होवे ते साफ कीते हुए जोड़ियां नूं दोबारा झाड़ना, ते जिस तरीके नाल जेकर निशान साहब का इशनान पहला करवा दिता है तो आके दूजे ने फिर बाल्टी भर के उहदे उत्ते डोलनी, फिर निशान साहब नूं मत्थे टेकने। इसे तरह के असीं भी कर्म जिहड़े ने, ऐसा नहीं कि गुरु पातशाह महाराज जी ने इकल्ला उस वक्त के लोगों को कहा, असीं भी बहुतात विच ऐसे कर्म करने आ जिन्हां दा साडा बाणी नाल गुरु दे नाल कोई नाता नहीं है। सतगुरु पातशाह कथन करते हैं जिहड़े बारी सरीरक तल ते कर्म कीते जाते हैं उन्हां दा परमात्मा नाल कोई नाता नहीं है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लुटै, निर्वाण कीर्तन गावों करते का निमह सिमरत जित छूटै। निर्वाण कीर्तन, इत्थे कीर्तन तो भाव कोई साज लैके जां किसी तरीके नाल गा के कीर्तन करन तो नहीं है। निर्वाण तो भाव है निष्काम, कामना तो रह के स्वार्थ रख के रब दे गुण ना गाउने। असीं तां स्वार्थ दे बदे ही रब दे गुण गाउंदे हां। कुछ दिन पहला आप जी ने शब्द सरवण किया सी, ज्ञान में मुना गावे गीत भुखे मुला घरे मसीत। जदों ज्ञान तो सखना बंदा रब दे गीत गाउंदा है, वो असल विच स्वार्थ की पूर्ति वास्ते गाउंदा है। जां तां उसका जप करना, जां तां उसका सिमरन करना लोकां दे प्रभाव वास्ते हुंदा है कि लोग प्रभावित होण, उसका माड़ा फेरना। बहुतात विच साडे सिख अजिहे कर्म करते हैं, नाल माला दे मणके फेरदे हैं ते नाल गल्लां भी करी जांदे हैं, माला दे मणकिਆਂ ਦੀ गिनती करी जांदे हैं। असीं लोग सिख समाज दे विच भी ऐसे कर्म करते हैं। अनेकां तरह का पाठ, अनेकां तरह का कोई 51 गिनती के पाठ कर रहा है, कोई 31 पाठ कर रहा है। गुरबाणी नूं भी असीं जिहड़ा है गिनतियां दे विच पा दिता गया है। तो पातशाह किरपालता करते हैं, कह लगे निर्वाण कीर्तन, निष्काम होके कीती हुई रब की वडियाई, स्वार्थ पूर्ति वास्ते नहीं। असीं जदों भी पाठ करते हैं, सिमरन करते हैं, साडा तां गुरु अगे झुकना अरदास तो बिना कदे भी नहीं हुंदा। कदे भी असीं मत्था टेक के उसे वेले नहीं बैठते। पता नहीं किन्नियां अरदासां बेनतियां जिहड़ियां ने गुरु अगे करी जांदे हां कि मेरा ये काम बन जाए, ये मेरा मसला हल हो जाए। कई तरीके दे देखो अरदास करना माड़ा नहीं, पर हर समय गुरु दे कोलों कुछ मंग करते रहना, हमेशा सिमरन इसे करके करना कि मेरा एक काम बन जाए, मत्था इसे करके टेकना, मैं गुरु घर इसे करके जाना, मेरा कोई काम बन जाए। सदा असी गुरुद्वारे इसे करके जाते हैं, घर में सुख शांति आ जाए, मेरा काम बन जाए, पुत्र धीआं चंगे कारोबार ते लग जाण। असी कदे अपने आप वास्ते तो गुरु घर आउंदे ही नहीं। निर्वाण कीर्तन गावो करदेगा, जिस दिन कोई निष्काम होकर रबी वडियाई करता है, स्वार्थ नूं पासे रख के सेव कीती संतोख ही, संतोख रख के कीती हुई सेवा, सेव कीती संतोख ही। जिनी सच्चो सच ध्याया, उनी मंदै पैर ना रखियो, कर सो किरत धर्म कमाया। उनी दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला नित देवै चढ़ै सवाया। फिर उन्होंने वडियाई वड्डा पाया, रबी वडियाइयां करके उन्होंने ही वड्डे दा मुकाम हासिल किया है, जिन्हां ने निष्काम स्वार्थ नूं पासे रख के रब दे गुण गाए हैं। तां सतगुरु पातशाह कथन करते हैं, जिहड़े बारी सरीरक तौर ते कर्म कीते जाते हैं, जिन्हां दा रब नाल कोई नेड़ता नहीं है, जिन्हां दी धर्म नाल कोई नेड़ता नहीं है, जदों भी वो कर्म कीते जाणगे तां वो जिहड़े हन कर्म कांड हन, तां वो जिहड़े हन इत्थे संसार विच ही रह जाते हैं। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लुटै, निर्वाण कीर्तन गावो
करते का निमख सिमरत जित छूटै। फिर पातशाह जी ने आख्या संतों सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतर का सो गुर प्रसादी तरिए। ते किस तरीके दे नाल इस संसार विचों पार होना है, जे रब नाल जुड़िया होया दा कोई वचन मान लवे। संतों सागर पार उतरिए, सिमरन वालियां दी संगत ही जिहड़ी है पार ला सकदी है। इत्थे हुण जप तां अनेक तरह दा कीता जांदा है, कई प्रकार दा जप है। जप जिहड़ा है गिणती तो रहत है। वेखो गुरबाणी दे विच भी किन्ने नावां दे नाल रब नूं पुकारिया है। जिवें जिवें किसे भगत दी नेड़ता बणी रब दे नाल, किसे भगत ने तां रब नूं जदों याद कीता उसने ये आख्या कि हे परमात्मा तू मेरे भरा वर्गा है। किसी भी अवस्था जदों बनी उसने आख्या तू मेरे यार वर्गा है। किसी ने ये आख्या हे साई मालक मैनू इंज भासदा है कि तू जिस तरीके नाल एक स्त्री का पति हुंदा है, मालक हुंदा है, साई हुंदा है, तू मेरा साई है। जिवें जिवें किसी भगत की आराधना करने वाले की रब नाल नेड़ता बनी, उस तरीके नाल उसने याद किया है रब नूं। जदों असीं बाणी विच पढ़ने हां, सतगुरु पातशाह कथन करते हैं मैं कामण मेरा कंध करतार। मैं उस परमात्मा की स्त्री हाँ, जिवें एक स्त्री हुंदी है ते उसका पति हुंदा है। मेरी रब नाल नेड़ता इंज है। सतगुरु पातशाह धन गुरु अर्जन पातशाह जी दे बोल हैं, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरे मां प्यो वर्गा है, तू मेरे भरा वर्गा है। ते किसी ने याद किया है सुन यार हमारे सज्जन एक करूं बेनंतियां। हे मेरे यार रब, हे परमात्मा तू मेरा यार है, तू मेरा मित्र है। सुन यार हमारे सज्जन एक करूं बेनंतियां। तिस मोहन लाल प्यारे हूं फिरो को जंतियां। पातशाह जी ने कथन किया है कि जिवें जिवें किसी की रब नाल नेड़ता बनी, ਜਿਹੜੇ भी उसनूं शब्द मिल गए उन्हां शब्दां दे नाल ही उसने उस करते नूं याद किया है। ते ਜਿਹੜੇ ਇਹ शब्द ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ जप ਹਨ, याद करन दे ਜਿਹੜੇ ਉਹ शब्द ने उन्हां दी कोई गिणती है नहीं है। कोई किस तरीके नाल याद कर रहा है। इत्थे हुण इकल्ला जेकर गिणती वाचक के शब्द हुंदा तां मनुख तक सीमित रह जांदा। हुण पर ਇਹ असंख्य है, संख्या तो रह ते पता नहीं किन्ने जीव किन्ने गुनाहां नाल रब नूं याद कर रहे हैं। पातशाह जी ने तां गुरबाणी विच दस्सिया कहण लगे पंछी भी उस नूं कई नावां दे नाल याद करदे ने। बाबीहा अमृत वेले बोलिया तां दर सुनी पुकार। ते वो बबीहे ने उस पंछी ने भी रब दे कोल पुकार कीती होवेगी। वेखो ये जिहड़े जीव जंतु ने ये भी कई नावां दे नाल रब नूं पुकारदे होणगे। इन्हां दी याद विच भी उस परमात्मा दा सिमरन चलदा होवेगा ते वो जिहड़ी जप दी क्रिया है वो गिणती तो रहत है, उसकी कोई गिणती नहीं। असंख्य जप, असंख्य भाव, असंख्य तरह का कई तरीकों की रब दे अगे भावना रख के परमात्मा नूं याद किया जाता है। जिवें जिवें किसी की प्रेम भावना है, कोई उस परमात्मा नूं देखो अपना मित्र समझदा है, कोई बादशाह समझदा है, कोई दरिया आख रहा है, कोई किस तरीके दे नाल परमात्मा दे नाल लगाव रखदा है। असंख्य जप, असंख्य भाव, असंख्य पूजा, असंख्य तप ताओ, असंख्य तरह की कई गिणतियां की कई तरीकों की जिहड़ी है पूजा की जाती है। रब की पूजा कई तरीकों के नाल की जा रही है। कोई किस तरीके दे नाल उसका पूजा पाठ कर रहा है, कोई किस तरीके दे नाल उहदी पूजा अर्चना कर रहा है। कई तरीके दे नाल किते टल खड़काए जा रहे हैं, किते आरतियां हो रही हैं, किते मसीत विच बांग दी जा रही है, किते आख्या जा रहा है कि बिल्कुल चुप रह के उस परमात्मा नूं सुनना कीता, यही पूजा है। पूजा भी कई तरह दियां जिहड़ियां समाज विच प्रचलित हैं, पर पातशाह जी ने गुरबाणी विच आख्या सी पूजा कीचै नाम ध्याई है।
पूजा असल विच की है? नाम ध्याना ही असल विच रब की पूजा है। परमात्मा की पूजा असल विच यही है। कुदरत कमण कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, तू सदा सलामत निरंकार, जो तद भावै साई भली कार। ये भी असल विच पूजा है कि परमात्मा जो कुछ तेनू भाउंदा है वही असल विच तेरी पूजा है। तेरी रजा नूं मनना ही असल विच पूजा है। बादशाह जी कथन करते हैं कई तरीकों की पूजा की जा रही है। बाहरी तौर की शरीरक तल ते मनुख कई तरीकों के नाल रब नूं पूजण दा यतन कर रहा है। पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो, जिस पान को पाती तोरै सो पान मेरे जियो। भूली मालन है वो सतगुर जागता है जियो। संसार के लोग भुल जाते हैं भई रब जिहड़ा है पत्थर की मूर्त है। जो ये मूर्त साची है तो गणनहारे खाओ। जे ये रब इन्हां पत्थरां दे विच मौजूद हुंदा तां पहिलां घड़नारे नूं जिहने रब दे बुत बनाए ने पहिलां तो उहनूं थल्ले सट्टदा। इस करके रब्बी पूजा प्रतिष्ठा कई तरीकों के नाल कीती जा रही है। कोई पत्थर पूज रहा है, कोई सप नूं बाबे मान के पूजी जा रहा है, कोई आखदा है कि सप ही बाबे हैं, कोई पत्थरां नूं रब आख रहा है, कोई गऊ नूं रब आख रहा है, कोई किस तरीके दे नाल दरख्तां की पूजा की जा रही है, किते पानी की पूजा की जा रही है। आद काल दे विच जदों पिछे जाते हाँ मनुख का पुरातन इतिहास पढ़ते हाँ ते उत्थे जो मनोचिंतकों ने लिखा कहते कि आद काल का मनुख जिस भी चीज तो डरिया उसने उसे नूं रब मान के पूजा शुरू कर दी। पहला उसने जदों समुंदर वेख्या पानी वेख्या तां उन्हें समुंदर तो डरिया मनुख प्रभावित होया तां उन्हें आख्या कहते मैनू समुंदर का पानी ना डोब लवे ते उन्हें समुंदर नूं ही रब मनना शुरू कर दिता, पानी नूं रब मनना शुरू कर दिता। जदों किते पत्थरां नूं रगड़ के अग पैदा हुई, अग बाली गई, मनुख उहदे तो डरिया ते उन्हें अग की पूजा जिहड़ी प्रचलित कर दी। जदों किते सूरज वेख्या चंद्रमा वेख्या उन्हां दी पूजा प्रचलित हो गई। जदों किते बिजली चमकी आसमान विच तां उसनूं उसने रब मान के पूजना शुरू कर दिता। ਜਿਹੜੀ चीज तो मनुख प्रभावित होया, जे सप तो डरिया तां सप नूं बाबे मनना शुरू कर दिता। इस तरीके दे नाल आद काल तो मनुख डर के जां डर मन के भै भीत होके रब दी पूजा प्रतिष्ठा करदा आ रहा है। पर पातशाह महाराज जी ने बाणी विच आख्या है पूजा कीचै नाम ध्याई है छोड़ो दुनी प्रीता। रब दी पूजा असल विच नाम सिमरन करना ही उसकी पूजा है। वेखो पूजा दा उथे प्रचलित सी, जे पूजा दा विधि विधान गुरु नानक पातशाह जी ने समाज विच प्रचलित करना हुंदा तां कदी भी जगन्नाथपुरी जेड़े पांडे आरती कर रहे सन उन्हां दे कोल जाके ये शब्द क्यों उच्चारण करने पए गुरु नानक पातशाह नूं, क्योंकि वो बाहरी तौर ते रब नूं खुश करन दा यतन कर रहे सन। वड्डा थाड़ लैके विच दीपक बाल के विच धूप अगरबत्ती रख के ते वो आख रहे सन असीं रब दी पूजा कर रहे हाँ। पर गुरु पातशाह महाराज जी ने उत्थे जिहड़ा वचन उच्चारिया जिहड़ा असीं रोज पढ़दे हाँ धनासरी राग दे विच गगन में थाल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलियाण लो पवन चवरो करे सगल बनाए फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती। रब दी आरती तुसी जिहड़ी है आ बाहरी क्रिया दे नाल करन लगे हो, पर उस परमात्मा दी आरती उस कादर दी आरती तां इह कुदरत जिहड़ी है दिन रात ही कर रही है। कैसी आरती होए भाव खंडना जिस विच कदी भी विघन नहीं पैंदा, जिहड़ी आरती कदे भी खंडित नहीं हुंदी वो आरती तां दिन रात हो रही है। आ बनस्पति जिहड़ी है ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਣੋ ਪਵਨ ਚਮਰੋ ਕਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਕੜ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਹਵਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਕ ਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਦੀਵੇ ਤਾਂ ਆ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਇਹ ਸੀ ਬਾਹਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ। ਤਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਕੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਔਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਤਪ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬਹੁ ਵਚਨ, ਅਸੰਖ ਤਪ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਉਸ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਟ ਨੇ ਜੜਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵਿਭੂਤ ਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਗਲ ਨਾਲ, ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੇ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੈਟ ਤੇ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤਿੱਖੇ ਔਜ਼ਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵੇਦ, 18 ਪੁਰਾਣ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ, ਗੀਤਾ, ਅੰਜੀਲ, ਤੋਰੇਤ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਹਨ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ, ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
जिन्हां ने वेद उच्चारण कीते, ऐसा मन्निया गया कि ये किसी रब दे प्यारियां ने, किसी बंदगी वालियां ने अपने मूँह उच्चारण करके ये जिहड़ा है लिखिया होया है। कई तरीकों के ऐसे ग्रंथ हैं, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रहे उदास। ते जोग भी जिहड़ा है कई तरीकों का है, जोग दियां भी कोई एक क्रियावां नहीं हैं, कई तरीकों के जोग के आसन हैं, जोग दियां क्रियावां हैं, जोग दियां पंथियां हैं, वक्खो वखरे पंथ हैं जोगियां दे। जोग का अर्थ वैसे जोग शब्द का अर्थ हुंदा है मिलाप, रब का मिलाप। जोग का अर्थ हुंदा है जोड़ना, रब नूं मिलण वास्ते कई तरीकों दीयां योग क्रियावां, किते न्योली कर्म, किते भुंगम कर्म, किते कई तरीकों के आसन किए गए रब नूं पाउण दे वास्ते। असंख्य जोग मन रहे उदास, ते कई मनुख उदास रह के भाव के बैराग विच रह के रब नूं याद करते हैं। जिवें उदासियां दी एक संप्रदा है, जिवें निर्मले संतां दी एक संप्रदा है, जिहड़े ये मनदे हन कि उदास रहण दे नाल परमात्मा मिलदा है। ते पातशाह जी ने गुरबाणी विच भी आख्या है, देखो परमात्मा जिहड़ा है, परमात्मा दे मार्ग ते कोई इस करके भी चल पैंदा है जदों जीवन दे विच बैराग पैदा हो जांदा है। किसी घटना नूं वेख के कोई घर दे विचों जी चला जावे, कोई समाज का उजाड़ा हो जावे, समाजिक कतलेआम हो जावे, बहुत वड्डी घटना वापर जावे, तां मनुख नूं इथों बैराग उपज पैदा है। बैराग का अर्थ है उदास। ते कई मनुख बैराग लैके रब नूं पाउण वास्ते घरों तुर पैंदे ने। जिवें उदाहरण के तौर पर आप जी दे नाल सांझ पाइए कि भाई तारू सिंह नूं कित्थों बैराग पैदा होया, जदों मां ने चुल्हे दे विच लकड़ां दी अग बालण वास्ते आख्या। जदों चुल्हे दे विच बच्चा सी, लकड़ां पहला वड्डियां बालण दा यतन कीता ते लकड़ां नूं अग कित्थों लगनी सी। मां ने वेख्या अग नहीं बली ते बच्चा सी कोल आके आख्या, बच्चा पहला निक्कियां लकड़ां नूं अग बाली जांदी, फिर ही वड्डियां नूं लगदी। उतों मन दे विच एक घटना वापरी, कहण लगे मां जे निक्कियां लकड़ां नूं अग पहला लगदी है ते हो सकदा है जदों मौत आउणी है वो भी पहला बजुर्गां नूं ना आवे, वो भी पहला बच्चिआं नूं आ सकदी है। मां ने आख्या ये गल सच है, जेकर मौत किसी भी अवस्था में आ जानी है तो मां उस मौत ते फतेह क्यों नहीं पाई जा सकती। वेखो एक घटना तो केवल निक्की गई सी, पर उस निक्की घटना ने मन में उदासी बैराग पैदा कर दिता। महात्मा बुद्ध ने जीवन में 3 घटनावां देखियां। पहला उन्होंने एक कोढ़ के रोगी नूं देखिया तो अपने साथी नूं आख्या जीवन में कदी भी मनुख रोगी भी बन सकता है। फिर उन्होंने रस्ते दे विच की देखिया कि रस्ते में एक बजुर्ग बंदा तुरया जा रहा है, जिहड़ा रस्ते में डिग पैंदा है, ते उन्होंने आख्या बुढ़ापा हरेक ते आवेगा। ते साथ ही ने आख्या सी हर मनुख ने बुढ़ाउणा है, बुढ़ेपे दे रोग जिहड़ा हर एक दे उत्ते आएगा। तो उस वक्त महात्मा बुद्ध ने आख्या सी मेरे ते बुढ़ेपा आ गया। ये बुढ़ेपा उस बुजुर्ग का नहीं, ये बुढ़ेपा एक दिन मेरे उपर भी आएगा। फिर एक अर्थी जांदी देखी तो उस वक्त महात्मा बुद्ध जिहड़े बचपन जिन्हां दा नाम सिद्धार्थ थे, तो उन्होंने आख्या कहण लगे मौत ये मौत उस नूं आई है जिसनूं अज लैके जा रहे हैं, तो ये मौत एक दिन मेरे घर में भी आएगी। तो उस वक्त ही जिहड़ा है सिद्धार्थ ने राजपाट त्याग के तो उसने रब नूं पाउणा शुरू कर दिता। कई मनुख संसार विच इहो जिहे ने जिहड़ी निक्की जिही घटना तो प्रभावित होकर मन विच बैराग लैके रब्बी दर तक पहुंच जाते हैं। सतगुरु पातशाह जी ने बाणी विच दस्सिया मन बैराग भया दर्शन देखने का चाहो, तेरे भी मन विच रब नूं पाउण दा बैराग पैदा होना चाहिए है। बिरहा की है? बाबा फरीद साहब जी ने आख्या सुल्तान है बिरहा। जे कोई बिरहा उदास अपने अंदर बैराग धारण कर लवे तो यह सुल्तान बन जाता है। बिरहा बिरहा आखी है, बिरहा तू सुल्तान, हे बिरहा हे बैराग तू सुल्तान है, तू श्रोमणी है, क्योंकि तेरे करके रब नूं पाउण दा वसीला मिल जाता है।
बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा, जेत तन बिरहो ना उपजै सो तन जान मसान। जिस दे अंदर रब नूं पाउण दा बराग नहीं, इहो जिहा शरीर किसे काम दा नहीं है। बादशाह कथन कर रहे हैं, इसे तरीके दे नाल असंख जोग मन रहे उदास। कई तरीकों दियां जोग दियां क्रियावां हन ते कई तरीकों दा ही उदासी मत है। कई तरीकों दे ही उदासी संप्रदावां हन ते उन्हां दे विच रब नूं पाउण दे वखो वखरे वसीले हन। असंख भगत गुण ज्ञान विचार। इत्थे भगत जिहड़ा है फिर तत्ता जिहड़ा है औंकड़ तो मुक्ता है। देखो भगत शब्द गुरबाणी दे विच तीन तरीकों के नाल आया है, चार तरीकों के नाल। एक तो है भगती, जिथे तत्ते नूं बिहारी लगी हुई है, भगती रब की बंदगी करना, सिमरन करना। एक है भगत दे तत्ते नूं सिहारी है, ते एक शब्द है भगत तत्ते नूं औंकड़ है, ते एक भगत है जिथे इन्हां तिन्नां अखरां नूं कोई लगा मात्रा नहीं लगी हुई, ना तत्ते नूं भी औंकड़ नहीं लगा ना सिहारी। उथे भगत है बहुवचन, जिथे तत्ते नूं औंकड़ है उथे है एक वचन कि रब दा भगत। इथे भगत जिहड़ा है बहुवचन है, क्योंकि औंकड़ तो मुक्ता है। असंख भगत, कई तरीकों के रब नूं आराधन वाले भगत जन हन। भगतां दी जिहड़ी है गिणती नहीं है, किन्नी तरह के रब की आराधना करन वाले भगत जन हन। आम तौर पर गुरबाणी में भगत के जो अर्थ हैं, आज जी ने पहला भी सरवण किया होगा कि 3 गुण पातशाह महाराज जी ने भगतां के जीवन के जिहड़े हैं बयान किए हैं। मत हुंदी होए आना, ताण हुंदे होए ने ताणा, अण हुंदे आप वडाए, वो ऐसा भगत सदाए। जिहड़ा इन तिन्हां गुणां नूं धारण करता है वही असल विच भगत है। भगत सतगुर पुरख सोई, जिस हर प्रभ भाणा भावे। जिन्हों रब का भाणा भा जाए, जिहड़ा रब के दिते का शुकराना कर लवे, उसे नूं भगत आख्या जाता है। तो पातशाह कृपालता करते हैं, भगतां दी इस समाज विच कोई गिणती नहीं है कि किन्नी तरीकों के रब नूं चेते करन वाले, याद करन वाले, रब की बंदगी करन वाले भगत जन हैं। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, परमात्मा के गुणों की विचार करने वाले, उसके ज्ञान की विचार करने वाले भगत जिहड़े हैं, उहदे दिते हुए उपदेशों नूं व्याकरण के द्वारा उसके दिते उपदेशों नूं कमा के अगे प्रचारन वाले, उस परमात्मा के गुणों का वर्णन करने वाले किन्ने हैं, उन्हां दी भी कोई गिनती नहीं है। कोई किस तरीके दे नाल रब नूं दस्सण दा यतन कर रहा है, कोई किस तरीके दे नाल अजोके समाज दे विच भी कई तरीकों के नाल जिहड़ा है रब नूं बयान करन दा यतन कीता जा रहा है। कोई आख रहा है कुदरत विच रब वस रहा है, कोई आख रहा है अखां बंद करके रब दे दीदार हो जाते हैं, कोई आख रहा है अखां खुलण नाल रब मिल जाता है, कोई आखदा है कंन विच गुर मंत्र देण नाल रब मिल जाता है। इस तरीके दे नाल रब नूं पाउण दे वसीले गुण उहदे उच्चारण करके रब दे बयान करन वाले बहुत तरीकों के लोग हैं। कई करामातां विखाल के, कई किसी तरीके दीयां करामातां विखाल के रब दे नाल जोड़न दा तरीका, प्रभावित करन दा तरीका जिहड़ा है अपना लैंदे हैं। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दा तार। सती का अर्थ है सतमंते, सत वाले पुरुष जिहड़े सत ते चलते हैं। सतगुरु पातशाह कथन करते हैं, जिन्नी पछाता सच चुम्मा पैर मुंह। जिन्हां ने बाबा फरीद साहब आखते हैं, जिन्हां ने जिंदगी के अंदर सच धारण कर लिया, असल विच कोई सतवंते ने। मैं उन्हां दे पैर, उन्हां दे हस्त कमल भी चुम लवां जिन्हां ने अपनी जिंदगी के अंदर सत धारण कर लिया है। जिहड़े सतवंते हैं इन्हां दी कोई गिनती नहीं है। अजोके समाज विच असी इस गल नूं मन विच विचारते हां कि शायद अज दे दौर विच कोई भी सत ते चलण वाला नहीं, पर जिन्नी को साडी दृष्टि है असी उन्हां को वेख लैंदे हां। अजोके समाज विच भी सत पुरुषां की कोई कमी नहीं है।
कल दी पंच प्रमाण वाली पौड़ी दे विच आपां सरवण कीता सी कि धर्म असल दे विच इन्हां सत पुरुषां दे करके ही टिकिया होया है। दया मन विच धारण करन वाले जिहड़े सिमरन करन वाले हन, असल विच धर्म जिहड़ा है इन्हां दे सिर दी समाज विच खड़िया होया है। सतगुरु पातशाह कथन करदे हन, असंख सदी इन्हां सदवंते पुरखां दी सत ते चलण वालियां दी कोई गिनती नहीं। किन्ने कु हन असंख दातार, दातार शब्द है ते दाते जिहड़े हन इन्हां दी कोई गिनती नहीं। कोई रिजक वंडी जा रहा है, कोई कपड़े का दानी है, कोई माया का दानी है। गुरबाणी विच तां ऐसा भी आया है, पातशाह जी ने कथन कीता है, कह लगे कई इस समाज विच इहो जिहे दानी भी होए, कईयां ने भूमि जमीन ही दान कर दी, कईयां ने इथों तक रब दे कोल अपना आप संसार सागर तो जिहड़ा है पार करने वास्ते अपनी इथों तक स्त्री तक दान की। कईयां ने हैबर गैबर घोड़े, इस तरीके के कईयां घोड़े, जिन्नी कू किसी की प्रतिष्ठा सी उन्ना को वड्डा उन्हें दाता बनदा विखावा समाज विच कीता। जिहड़े ज्यादा प्रतिष्ठा वाले सन उन्हां घोड़े दान कीते, उन्हां हाथी दान कीते मंदिरां दे विच, कई तरीकिਆਂ दे ਉਹ दादे बन के प्रचलित होए ते कईयां ने भूमि जमीनां दान कीतियां। इस तरीके दे नाल कई तरीकिਆਂ दे दाता है वो बन के समाज विच विचरे, उन्हां दी कोई गिनती नहीं है। कई तरीकिਆਂ दे दाते हैं, पर पातशाह महाराज जी ने कथन किया है, कह लगे इन्हां सारियां दे उपर जिहड़ा एक वड्डा दाता है, कह लगे वो ऐसा दाता है कि वो दाता देंदा ही आया है ते जीव उस तो दाता लैंदे थक जाते हैं। जुगा जुगंतरा तक मनुख दीआं दातां नूं वरती जाते हैं, उस दाते की दात कदे मुकण विच नहीं आउंदी। जदों असीं गुरबाणी दे विच रोज पढ़दे हां, सतगुरु पातशाह कृपालता करदे हैं, कहण लगे उस परमात्मा दे भंडारे विच कदी भी कमी नहीं आउंदी। देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाए। जुगा जुगंतरा तो वो दाता बनदा आया है ते संसार विच ऐसे बहुत दाते हैं ਜਿਹੜੇ कई तरीकों के दानी हैं। वेखो ऐसे दाते भी समाज में प्रचलित होए जिन्हों ने अपना आप ही कुर्बान कर दिता। करवत्तर नाम का आरा पुजारी वालों कुरुक्षेत्र के विच लाया गया, जिहड़ा उन्हें भरम पालिया समाज दे विच ये जिहड़ी है गल प्रतीक वजों उसने वरती कि जिहड़ा इस करवत्तर आरे दे थल्ले अपने आप नूं चरवा लवेगा तो वो जिहड़ा है मुक्त हो जाएगा जिउंदे जी। वेखो वड्डे प्रतिष्ठा वाले जिहड़े लोग सन, गुरबाणी विच इसका जिक्र भी आया है ते सतगुरु पातशाह कथन करते हैं, कई वड्डी प्रतिष्ठा वाले राजियां ने, अमीर लोगों ने अपना आप चिरवा दिता कि अपना आप दान कर दिता। पर प्यारिओ इस समाज में बड़े दाते आदमी नूं मिल जाणगे। कोई शरीर दान कर रहा है, कोई भूम दान कर रहा है, कोई गऊआं दान कर रहा है, पर अज तक कोई ऐसा दाता नहीं मिलिया जिसने अपना परिवार अपना सरबंस तक ही दान विच वार दिता होवे। गुरु कलगीधर पिता महाराज जी ने जदों वारण तो आए तो उन्होंने प्यारिओ अपने 4 पुत्र इस धर्म तो वार दिते, फिर अपनी मां मार दी, फिर अपना पिता कुर्बान कर दिता। ते उन्हां वर्गा कोई सरबंसदानी पिता समाज में विखाई नहीं देता। दाते तो बहुत ने, कोई दान रुपया का करता है, कोई माया के चढ़ावे, कोई कपड़े का दान कर रहा है, पर कोई किसी की खातर अपना परिवार नहीं वारदा। गुरु कलगीधर पिता महाराज जी ने जदों लोड़ पई धर्म नूं तां अपना परिवार ने शामिल कर दिता। असंख सदी असंख दातार, असंख सूर मोह पखसार। अनेकां तरह के ऐसे सूरमे हैं, असंख गिनती तो रह, अनेकां तरह के ऐसे सूरमे हैं। मोह का अर्थ है मूंह के उत्ते, पख सार, सार का अर्थ है लोहे के शास्त्र। अनेकां ऐसे सूरमे ने जिहड़े जंग दे विच दुश्मन दे कोलों लोहे के फट जिहड़े ने मूंह के उपर खांदे हैं। अनेकां तरह के ऐसे सूरमे हैं जिन्हां दी कोई गिनती नहीं,
ਜਿਹੜੇ मैदाने जंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। असंख सूर मोह भख सार, असंख मोन ले लाए तार। ते कई तरीकों के ऐसे समाज विच टोले प्रचलित हैं, कई फिरके प्रचलित हैं जिहड़े मौन रह के रब नूं पाउण दा यतन करते हैं कि चुप रहण दे नाल जिहड़ा है परमात्मा मिल जाता है। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने आख्या है चुप किथे रहना है ते बोलना किथे है। जिथे बोलण हारी है तिथे चंगी चुप। जिथे बोलण दे नाल बाबे कबीर ने आख्या सी बोलत बोलत बड़े बेकारा, बिन बोले क्या करे विचारा। ज्यादा बोलण दे नाल जेकर फजूल बोलना है ते ओदे नाल वकार बदने हैं। बहुता बोलण झखण होए, बिन बोले जाने सब सोए। जदों कोई रब दे अगे बेनतियां करदा है, वार वार रब नूं आखदा है मैनूं ये मिल जावे, कई तरीकिਆਂ ਦੀਆਂ बेनतियां करदा ते पातशाह ने आख्या उत्थे भी बंदा झाकी मारदा। बहुता बोलण झखण होए, बिन बोले जाने सब सोए। वो परमात्मा दा सारा कुछ जानदा है, फिर ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ बोलण दा कोई फायदा नहीं है। ਤਾਂ जिथे बोलण दे नाल नुकसान होया, बाबे कबीर ने आख्या बोलत बोलत बड़े बेकारा, बिन बोले क्या करे बेचारा। जिस मनुख दा सुभाव है बहुता बोलण दा, आम तौर ते साडे समाज विच भी प्रचलित है ना। कई मनुख ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਲਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਬੋਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੋਲਤ ਬੋਲਤ ਬੜੇ ਬੇਕਾਰਾ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰੋਲਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇਕਰ ਆਖੀਏ ਮੌਨੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਦ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਉੱਡ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਆਖੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਇੱਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਈ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਬੋਲ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਬੋਲ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਈ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਈ ਐਸੇ ਸੰਤ ਸਨ, ਸੰਤ ਅਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਸਤੂਆਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਮਗਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਈ ਜੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਬੋਲੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਿਆ ਜਾਵੇ। असंख
ਮੌਨ कई तरीकों के चुप रहन वाले लोग भी समाज में मौजूद ने। वेखो इत्थे आ जिहड़ी विचार है जपजी साहिब के आरंभ वाले पड़ाव नाल जाके जुड़ जाती है, जिथे पातशाह जी ने आख्या सी चुप है चुप ना होवई जे लाए रहा लिपतार। चुप रहन दे नाल मनुख दा मन कदी भी शांत नहीं हुंदा। जे लखां वारी भी लिव व्यक्ति अपनी जोड़ लवे तार, भावें तार दा ते धार टका करके बह जावे ना भई मैं नहीं बोलना, पर कह लगे चुप रहन दे नाल जबान दा चुप हो जाती है पर मन कदी चुप है, मन कदे शांत नहीं हुंदा। आप जी ने वेख्या होगा कि शब्द ਜਿਹੜੇ ਹਨ इस समाज ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਓ ਜੇ, ਉੱਥੇ एक टोकन लगे होंगे जिहदे उत्ते असीं हत्थ फेरने ते बिंदु लगे होंगे ने। वो भाषा किहਨਾਂ वास्ते है, वो जिहड़े अन्ने मनुख हैं भाव जदों कोई इत्थे नेत्रहीन व्यक्ति बैठे तो उहदी भाषा लिखी हुई है, वो उंगलियां फेरेगा तो उन्हें पता लग जाना भी ये गड्डी कित्थे जावेगी, ਇਹਦਾ ड्राइवर कौन है। उत्थे उन्हां दी जिहड़े नेत्रहीन व्यक्ति ने उन्हां दी भी भाषा अंकित की हुई है। मनुख जिहड़ा है भावें नेत्रहीन भी होवे पर भाषा समझ लेता है, क्योंकि मनुखी मन के तल ते ही मनुख ने सारा कुछ वेखना है। अखां केवल वेखण दा काम करदियां ने पर प्रतिबिंब तां मन दे अंदर बनता है ना। पातशाह महाराज जी ने आख्या कह लगे कई मौन रहन वाले जिहड़े हन बहुत गिनती दे लोग हन इत्थे असंख मौन लिव लाए तार। कई किस तरीकों की ध्यान सुरती बिरती जोड़ के मौन रह के पता नहीं किन्ने को रब की बंदगी करने वाले बोले हैं। असंख मौन ले बुलाए तार। अखीरलियां पावन पंक्तियां अंदर पातशाह कथन करते हैं कुदरत करन कहां विचार। तेरी कुदरत नूं मैं किस तरीके दे नाल बयान करा, किस तरीके नाल कथन करा कि किन्ना तू पसारे दे विच ये जिहड़ी तेरी खेड़ वरत रही है। असंख जापां हन, असंख पूजा चल रही है, असंख तरह के लोग इत्थे विचर रहे हैं। तेरी कुदरत का कोई अंत नहीं है। कुदरत करन कहां विचार, मैं किस तरीके नाल बयान करा विचार करा। वारिया ना जावां एक बार, हे परमात्मा जे मैं ये यतन करा कि मैं जेकर तेनू बयान नहीं कर सकता तो आप ही तेरे उत्तों वार देवां, पर किन्नी कु वार मैं आप कुर्बान कर देवां। वारिया ना जावां एक बार भी तेरे उपरों आपा वार के मैं तेनू बयान नहीं कर सकांगा। वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै सारी भली कार। अखीर ते मैनू यही आखना पवेगा हे परमात्मा तेनू बयान तो नहीं किया जा सकता, पर जो भी तेनू भाउंदा है ना वो ही इस संसार दे विच वापरदा है। जो तुद भावै सारी भली कार। हे परमात्मा तेरी कार चंगी है, जो कुछ तू कर रहा वो सारा कुछ वधिया वापर रहा है। इत्थे जप करन वाले भी ने, इत्थे हुण वो भी आ जाने ने असंख मूर्ख आद घोर, असंख चोर हरामखोर। वो भी तां तेरियां ही दातां ने। वो चोर, वो मूर्ख, वो असंख गल वन हत्या पकाने वाले जिहड़े ने वो भी तां तू ही पैदा कीते ने। जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार पर हे परमात्मा तू सदा ही इस धरती के ऊपर सलामत है। तू सदैव काल वास्ते रहने वाला है। हे निरंकार अकाल तो रहत परमात्मा। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने इस 17वीं पौड़ी के अंदर जो कथन किया है कि कई तरीकों का जप चल रहा है, कई तरीकों का तप करने वाले हैं, कई तरीकों के लोग इत्थे मौन रहने वाले हैं, कई तरीकों रब नूं चेते करने वाले हैं। अगलेरी पौड़ी के विच सतगुरु पातशाह जी ने जो उपदेश किया है आने वाले कल के दीवाना में आप सरवण करांगे। यतन करिए सतगुरु पातशाह महाराज जी का एक एक कणका मंत्र जिहड़ा है अपनी झोली विच पा के लै जाइए। पावन बाणी दीआं विचारां करदिआं बेनती भुलां हो जांदियां ने जी। होईआं बेनती भुलां गलतियां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सलो